दिल्ली में आयोजित तीसरे साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल की तरफ से किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की उन्नति का पता उसकी आर्थिक हालात से चलता है। Economic activity defines a nation. Just imagine what was our situation. In 1989, when I was elected to Parliament, Lok Sabha, and had the good fortune to serve Bharat by being a central minister, the size of Indian economy then was smaller than the size of economies of London and Paris. Just a decade ago, we were taken as a fragile five countries on the point of economy. What a jump in a decade. From slot number 11, we are at number 5. And look at, we are marched ahead of whom? UK, France, Canada, Brazil, and it's a matter of time. We'll be ahead of Japan and Germany. But then, this is one indicator. We have to go to the another indicator also. An indicator of economic growth that is relatable to every individual, because our size at the moment has to be seen in the context of our demographic size. So I have no doubt that our economy is looking up, and it is looking up on account of various steps taken. We never imagined that there will be banking inclusion of 500 million people. We never thought of it. We never thought empowerment of women will take place by toilets in every household, providing water. But I'll come to the relevant issue. 500 million banking accounts, banking inclusivity, has given us a big flip. Direct transfers are taking place. We account for nearly 50% of global transactions. Security of these transactions is critical. Innovative, menacing mechanisms are being developed to see that the beneficiary is deprived of it. Because every positive technology brings in its wake something for rogue elements. These rogue elements are ever prepared. And for lack of information, for lack of dissemination, people fall easily prey to these kind of practices. But great thing about this nation is that we have moved so fast in adaptability of internet. We have users, 850 million. We have internet per capita consumption that is more than that of US and China taken together. Can you ever imagine in a country like ours that 100 million farmers thrice a year will get financial advantage from the government? पिछले एक दशक में भारत काफी तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत ने कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटियों में से एक है। World Bank president was here during G20. He made very important suggestion, reflection, that India's digitization is role model for the world. What India has achieved in just 6 years is normally not achievable in 4 decades. And that being so, we have to be extremely well prepared to sustain our economic growth, to see the trajectory is incremental, that people are not disheartened by onslaught of cyber crimes, so that they are not cheated. There has to be a secure mechanism, and that can be brought about when think tanks of your reputation reach out to the people
through governmental mechanism, sensitizing them, disseminating the information so that people at large and institutions engage in prevention, precaution, neutralizing that, and ultimately something which comes to the table of my fraternity, legal fraternity. Right, sir, right. Because sir, right, sir. by and large, lawyers are facilitators. But it is one area which is new even to the legal fraternity, Very right. to the investigating agencies. Initially, we have a great difficulty. People are not aware where to report a cybercrime, when to report a cyber attack, and then the agency is not well prepared at all levels, because these crimes can take place in every nook and corner of the country, and the source may be much beyond our geographical borders. So the police system, the investigator, the regulator, the legal fraternity, all have to converge on one page. And in that context, you will have to work very hard, because disruptive technologies have come to stay. They'll be with us. They are in our home space. They are in our workspace. They have defined the way we will act. These technologies have got into driver's seat. Now these challenges have to be converted by us as opportunities. Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, machine learning, for many would be words. If you look at these words and expressions in the lexicon, they make no sense. But it was an eye-opener for me when we had the occasion to see a presentation by the department, what enormous potential it has. Because the area in which the think tank is focusing at the moment is an area not limited to just economics, not just to the aspects of business or individual persons. It is relatable also to the security of the nation. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आज भारत आशा और संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण इनोवेशन को बढ़ावा देता है, साथ ही निवेश को भी आकर्षित करता है। साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर भी बल दिया। भारत वास्तव में उस स्तर पर आ गया है जहां वैश्विक संस्थाएं जो इसे सलाह देने की कोशिश कर रही थीं, वे इसकी सलाह ले रही हैं। यह सब हाल ही में एक दशक में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उन्होंने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी है। 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
साथियों, बीते एक महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता और स्थायित्व दे सकती है। तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी और आज ये होते हुए भी हम देख रहे हैं। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एक्सपेक्टेशन इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर है। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है। भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र, और हम सभी इसके सहयात्री हैं। आज का ये कार्यक्रम महायुति सरकार के इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एस्पिरेशंस इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है, और इसमें मुंबई की, महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान भी मिलता है। इससे पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिलता है। यानी एनडीए सरकार के ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के विकास के काम गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया के लोग हालातों को बदलने में
देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। अगले 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। एक संगठन के रूप में आपका काम जितना प्रभावी बनेगा, देश को उसका उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, मीडिया केवल देश के हालातों का मुख्य दर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है। और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। आप भी देख रहे हैं, जिस देश में नागरिकों में अपने सामर्थ्य को लेकर आत्मविश्वास आ जाता है, वो सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। भारत में भी आज यही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद और सम्मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। हमारा मीडिया इस दृष्टिकोण से जितना अधिक काम करेगा, देश को उतना ही फायदा होगा। बदलते हुए भारत में देश के मीडिया ने इन्हें देश के नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया। जो स्टार्टअप शब्द 2014 के पहले ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें मीडिया की चर्चाओं ने ही घर घर तक पहुंचा दिया है। साथियों, आप मीडिया के दिग्गज हैं, बहुत अनुभवी हैं। आपके निर्णय देश के मीडिया को भी दिशा देते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरे आपसे कुछ आग्रह भी हैं। साथियों, किसी कार्यक्रम को अगर सरकार शुरू करती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी कार्यक्रम है। सरकार किसी विचार पर बल देती है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सरकार का ही विचार है। जैसे कि देश ने अमृत महोत्सव मनाया, देश ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। सरकार ने इसकी शुरुआत जरूर की, लेकिन इसको पूरे देश ने अपनाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह आज देश पर्यावरण पर इतना जोर दे रहा है, ये राजनीति से हटकर मानवता के भविष्य का विषय है। जैसे कि अभी एक पेड़ मां के नाम ये अभियान शुरू हुआ है। भारत के इस अभियान की दुनिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं अभी G7 में गया था, जब मैंने इस विषय को रखा तो उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि हर एक को अपनी मां का प्रति एक रहता है कि उसको लगता है ये बहुत क्लिक कर जाएगा। हर कोई कह रहा था। देश के ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउस अगर इससे जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत लाभ होगा। मेरा आग्रह है, ऐसे हर प्रयास को आप देश का प्रयास मानकर उसे आगे बढ़ाएं। ये सरकार का प्रयास नहीं है, देश का है। इस साल हम संविधान का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। संविधान के प्रति नागरिकों में कर्तव्य बोध बढ़े, उनमें जागरूकता बढ़े, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। साथियों, एक विषय है टूरिज्म से जुड़ा हुआ भी।
टूरिज्म सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं बढ़ता है। जब हम सब मिलकर देश की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं तो देश के सम्मान के साथ साथ देश का टूरिज्म भी बढ़ता है। देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप लोग अपने तरीके निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के सभी अखबार मिलकर के तय करें कि भाई हम सितंबर महीने में बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से। तो जब महाराष्ट्र के लोग चारों अखबारों में हर तरफ बंगाल बंगाल देखे तो उनको करेगा यार इस बार बंगाल जाने का कार्यक्रम बनाए तो बंगाल का टूरिज्म बढ़ेगा। मान लीजिए आप 3 महीने के बाद तय करेंगे हम तमिलनाडु की सारी चीजों पर सब मिल करके एक ये करें कि एक दूसरा करे, ऐसा नहीं, तमिलनाडु फोकस करेंगे। आप देखिए एकदम से महाराष्ट्र के लोग टूर में जाने वाले होंगे तो तमिलनाडु की तरफ जाएंगे। देश के टूरिज्म को बढ़ाने का एक तरीका, और जब आप ऐसा करेंगे तो उन राज्यों में भी महाराष्ट्र के लिए ऐसे ही कैंपेन शुरू होंगे जिसका लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। इससे राज्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, और आखिरकार इसका फायदा जिस राज्य में आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा प्रयास किए बिना आराम से होने वाला काम है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने को लेकर भी है। हमें सोचना होगा दुनिया में हम नहीं है एज फार एज मीडिया इज कंसर्न। हम 140 करोड़ लोग के देश हैं। इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य और संभावनाएं, और बहुत ही कम समय में हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होते देखने वाले हैं। अगर भारत की सफलताएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का दायित्व भी आप बहुत बखूबी निभा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले आधा देश बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। उनकी सरकार ने जनधन योजना के माध्यम से करीब 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में यही काम हमारा सबसे बड़ा माध्यम बना है।